Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study in this video is inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease, as the topic would be related to more of pediatrics. That's why this as a scenario narrates, the 13-year-old girl presents with 7-month history of diarrhea, central crampy abdominal pain, lethargy, weight loss. She is anemic. Obviously, diarrhea. उसको 7 महीने से diarrhea है. She would be anemic. Raised ESR and C-reactive protein. When ESR and C-reactive protein are raised, most the probable diagnosis जिसकी तरफ point करता है, it's an inflammatory condition. Stool examination shows no bacterial growth, ova, cyst, parasite, small bowel followed through upper endoscopy and colonoscopy confirms the diagnosis of inflammatory bowel disease. There are two types of inflammatory bowel disease. एक Crohn's disease, एक ulcerative colitis है, और दोनों में कुछ फीचर्स हैं जो कॉमन है, लाइक abdominal pain, that's especially central abdominal pain, fever, blood loss, diarrhea. Bloody diarrhea accompanied होगा most commonly with ulcerative colitis. Crohn's के स्किप लेजन्स होते हैं ना, मुंह से लेकर फ्रॉम माउथ टिल द एनस, स्किप लेजन्स में कहीं भी अफेक्ट कर सकता है, बट मोस्टली इट अफेक्ट्स द इलियम, आइलियम जिसे कहते हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्टली इट अफेक्ट्स द कोलॉन. इट मे अफेक्ट द आइलियम known as backwash ileitis, but it mostly affects the colon. And this IBD, its peak incidence occurs in second decade of life. Comparison Crohn's and ulcerative colitis, that's very important. Malaise, fever, weight loss, it's common in both. Rectal bleeding ज़्यादा यहाँ पे होती है क्योंकि ये rectum को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है. Abdominal mass Crohn's disease में प्रेजेंट होता है बिकॉज इट हैज स्किप lesions. ट्रांसम्यूरल जाके लीजन देती है, आगे हम देखेंगे. ट्रांसम्यूरल लीजन देती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक मैस, लेग पाइप अपीयरेंस मैस, स्ट्रिंगी म्यूकॉइड मैसेज आते हैं ना फीकल में. इट्स मोस्टली abdominal मैस यहाँ पे Crohn's में होता है. abdominal पेन दोनों में होगी. पेरिनल डिजीज़ यहाँ कॉमन है. साइनसेस भी यहाँ कॉमन होंगे. फिस्टुलास भी, स्ट्रिक्चर्स भी यहाँ कॉमन होंगे. आइलियल इन्वॉल्वमेंट कॉमन हेयर, नॉट कॉमन एक्सेप्ट इन बैकवॉश इलियाइटिस. रेक्टल इन्वॉल्वमेंट एज ए सेल यूनिवर्सल है, यहीं होनी है. ओकेजनल है Crohn's में हो. स्ट्रिक्चर्स, फिस्टुला, स्किप लेजन्स यहाँ होते हैं, यहाँ नहीं होते अल्सरेटिव कोलाइटिस में, Crohn's में होते हैं. ट्रांसमिनल इन्वॉल्वमेंट इज आल्सो इन Crohn's डिजीज. क्रिप्ट एब्सेसिस is variable to occur in Crohn's disease, but it's usually in ulcerative colitis. Interstitial granuloma common in Crohn's. Risk of cancer is greatly increased in ulcerative colitis. Thyroid is increased in Crohn's too. Erythema nodosum, it's common. Mouth ulceration common in Crohn's disease. Autoimmune hepatitis more common here in ulcerative colitis, and it is also linked towards sclerosing cholangitis. पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक एंड साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी आंका यहाँ पॉजिटिव होती है, और यहाँ स्मूथ मसल जो एंटीबॉडी होती है ना, स्मूथ मसल एंटीबॉडी या मसल के एंटीबॉडी होती है, वो यहाँ पे पॉजिटिव होती है. क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इट्स कॉमन के इट्स कॉमन इन द सेंस, इट्स मोस्टली कॉमन इन द सेंस इन बिटवीन Crohn's एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस कि अनीमिया है, ब्लड इन स्टूल है, एब्डोमिनल पेन, टेनेस्मस है. लेकिन इट्स कैटेगराइज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड ये कि अगर एक दिन में 4 से कम स्टूल आते हैं, नो फीवर, एनीमिया एंड हाइपरबिगेमिया, तो ये माइल्ड है. मॉडरेट तब होगा जब 6 या 6 से ज़्यादा है और फीवर, एनीमिया हो, हाइपरबिगेमिया तो रहेगा ही रहेगा. सीवियर डिजीज़ तब होगी हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, टैकीकार्डिया, ल्यूकोसाइटोसिस, हेमरेज एंड मोर देन 10 स्टूल्स पर डे. Ulcerative colitis can also lead towards toxic megacolon, जिसमें fever, abdominal distension, pain or massively dilated colon along with anemia and hyperbilirubinemia due to fecal protein loss. Crohn's disease is often subtle with crampy abdominal pain, fever of unknown origin, bloody diarrhea, और यहाँ arthritis भी होता है preceding the GIT manifestation. What can be the extra intestinal manifestation of Crohn's and ulcerative both? जॉइंट्स की तो सैक्रोइलियाइटिस है, आर्थ्रेल्जिया, पोलीआर्टिकुलर आर्थराइटिस है. फिर यहाँ जैसे मैंने बताया सैक्रोइलाइटिस. आइज़ में यूवियाइटिस, एपिस्क्लेराइटिस और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसमें भी है. जॉइंट्स में जो बैम्बू स्पाइन बन जाती है, गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, वेट लॉस, स्टोमाटाइटिस, फीवर, डिलेड ग्रोथ इन सेक्शुअल डेवलपमेंट, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलियंजाइटिस, स्पेशली इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. What are the further diagnoses? How would you diagnose a patient with ulcerative colitis and Crohn's and IBD? How would you diagnose? History, examination. एक्सरे में आप देखेंगे डबल एयर कंट्रास्ट बैरियम अनीमा डिमॉन्स्ट्रेट. अगर तो सूडोपॉलिप फॉर्मेशन है थ्रू आउट द कोलॉनिक लेजन्स हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस. लेकिन अगर फोकल इलियल है या फिर स्किप लेजन्स हैं, रेक्टल स्पेयरिंग है, सेगमेंटल नैरिंग मिलता है, स्ट्रिंग साइन, तो लॉन्गिट्यूडनल अल्सर है, दैट्स इन Crohn's disease. Further we also go for endoscopy to visualize the mucosa.
डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और क्या हो सकते हैं? इट कैन बी SL, इट कैन बी रूमेटाइड, क्योंकि उसमें भी GI सिम्टम्स आते हैं. क्रॉनिक बैक्टीरियल पैरासिटिक कॉजेज ऑफ chronic bacterial and parasitic causes of diarrhea such as Clostridium difficile, Campylobacterium, Yersinia, MBBS, giardiasis करा सकते हैं इस तरह का डायरिया. हाउ डू यू मैनेज द पेशेंट? मेडिकल मैनेजमेंट में कोई भी 110% क्योर नहीं है IBD का, तो हमने उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करना है. ट्रीटमेंट इज मेनली कंट्रोलिंग द सिम्टम्स. ऐसी डाइट देनी है हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में. हम लोग ऐसी डाइट देते हैं दैट इज़ रिच इन प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट विद नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ फैट इज गिवन. इट शुड बी एडुकेट एंड देयर शुड बी एडिक्वेट कैलोरी इनटेक. ये ना हो बंदा खाना पीना छोड़ते नहीं, उसको खाना पीना प्रॉपर उसका देना है. डिक्रीज अमाउंट ऑफ रफेज एंड लैक्टोज इन नॉट गिवन ड्यू टू पुअर टॉलरेंस इन एक्टिव डिजीज़. वाइटामिन, आयरन, जिंक और बाकी सप्लीमेंटेशन देंगे. नॉन ऑब्जॉर्बेबल सैलिसाइक्लिक सल्फासालाजीन क्या करता है? इंटेस्टाइन में जाके बैक्टीरिया हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय द कोलोनिक फ्लोरा और सल्फापायराडीन और अमाइनोसैलिसाइक्लेट बना देता है. दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी. प्रोबायोटिक्स दें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एजाथाइपुरिन, मेट्रोनिडाजोल. वाई मेट्रोनिडाजोल? इन केस कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी ट्रीट हो सकता है. प्लस इन क्रॉन्स डिजीज पेरी इन्वॉल्वमेंट, उसमें भी हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं. साइक्लोस्पोरिन, इट्स वेरी पावरफुल इम्यूनोसप्रेसेंट. इट्स वेरी इफेक्टिव इन सीवियर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस. स्टीरॉयड जहाँ रेजिस्ट करते हैं वहाँ साइक्लोस्पोरिन दे दें. एंटीसाइटोकिन्स, इन्फ्लेक्सिमैब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं. सर्जिकल ट्रीटमेंट ये है कि कोरोन के तो स्क्रिप्ट यूज होते हैं, सो वी कैन नॉट ट्रीट इट सर्जिकली. बट या अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन अगर हम निकाल दें तो देयर कैन बी अ ट्रीटमेंट possibility. In ulcerative colitis, surgery is indicated in uncontrolled hemorrhage, toxic megacolon या unrelenting pain, diarrhea, growth failure, high-grade mucosal dysplasia, malignant tumors बन रहे हो तो फिर कर सकते हैं. How is the prognosis? Crohn's की mortality is low, but morbidity it's very high. And prognosis in ulcerative is good. About 5% patient with megacolon requiring immediate colectomy. 20 to 40% patient may require colectomy due to pancolitis, anemia and hypolipidemia. इसमें प्रोग्नोसिस इसकी फिर भी बेहतर है सर्जरी के बाद ओवरऑल, और इसकी जो है मॉर्बिडिटी इसकी हाई है. सो दैट्स ऑल अबाउट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. जज़ाकल्लाह खैर.